डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है। He is wearing a jacket because it's cold outside. He is wearing a jacket because it's cold outside. कंघी उसके बालों में फंस गई. The comb got stuck in her hair. The comb got stuck in her hair. उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया. He opened the door and stepped outside. He opened the door and stepped outside. Outside यानी बाहर. मुझे तुरंत मदद चाहिए. I need help immediately. I need help immediately. मेहमानों को अंदर ले आओ. Get the relatives inside. Get the relatives inside. Inside यानी अंदर. मेरे कहे अनुसार कार्य करो. Act according to my directions. Act according to my directions. दूसरों के मामले में मत उलझो. Don't meddle in the affair of other. उलझो यानी meddle. Don't meddle in the affairs of others. 2 घंटे की लड़ाई के बाद मनदीप ने समझौता कर आगे बढ़ने का फैसला किया. After a 2 hours fight, Mandeep decided to make up and move ahead. After a 2 hours fight, Mandeep decided to make up and move ahead. मैं ऑफिस में अनुपस्थित रहने वाले समय की भरपाई के लिए 3 घंटे अतिरिक्त काम करूँगा. I will work extra 3 hours to make up for the time I was not available in the office. I will work 3 extra hours to make up for the time I was not available in the office. रसोइये ने गलती से बहुत ज़्यादा नमक डालकर रेसिपी को ख़राब कर दिया. The cook accidentally messed up the recipe by adding too much salt. The cook accidentally messed up the recipe by adding too much salt. मेहमानों के आने से पहले ही बच्चों ने गेस्ट रूम को अस्त व्यस्त कर दिया. The kids messed up the guest room even before the guests arrived. The kids messed up the guest room even before the guests arrived. रसोइये ने महिला से कहा, आइए केक के लिए सामग्री मिला लें. The cook asked the lady, let's mix up the ingredients for the cake. The cook asked the lady, let's mix up the ingredients for the cake. वह तुरंत अंदर चला गया क्योंकि बॉस बाहर कुछ कर्मचारियों से बात कर रहे थे. He immediately moved in because the boss was talking to some employees outside. He immediately moved in because the boss was talking to some employees outside. शायद ही कभी मैं कुछ अच्छा करती हूँ. I rarely do something good. I rarely do something good. मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा. I would like to share something. I would like to share something. मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ. I would like to learn English. I would like to learn English.
लाइक यानी पसंद करना। अगर मेरा बस चले तो मैं वहाँ चली जाऊँ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गो देयर। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गो देयर। देयर मतलब वहाँ। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। बस अपने आप पर भरोसा रखो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कीप ऑन वर्किंग एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। कीप ऑन वर्किंग एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। वह 16 साल की है पर दिखती छोटी है। शी इज 16 बट शी सीम्स यंगर। She is 16 but she seems younger. वह 20 साल का है पर दिखता बड़ा है। He is 20 but he seems older. He is 20 but he seems older. मैं उनको सलाम करता हूँ। I salute him. I salute him. उसने कितना कठिन सवाल पूछ लिया। What a difficult question he asked. What a difficult question he asked. Asked यानी पूछना। हर कोई उसे पसंद करता है। Everyone likes her. Everyone likes her. Like यानी पसंद करना। वह शायद ही कभी कुछ छुपाता है। He rarely hides something. He rarely hides something. Hide यानी छुपाना। इसका जिक्र मत करो। Don't mention that. Don't mention that. Mention मतलब जिक्र करना। मैंने अभी तक नहीं खाया। I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. तुमने खाना क्यों नहीं खाया? Why didn't you eat food? Why didn't you eat food? Food यानी खाना। मुझे खाना बनाना आता है। I know how to cook. I know how to cook. Cook यानी खाना बनाना। यह ज़रूरी है। It's urgent. It's urgent. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने जानबूझकर गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की। Australian cricketer admitted to deliberate tampering with ball. Australian cricketer admitted to deliberate tampering with ball. विजेता की घोषणा करने से पहले जजों ने 1 घंटे तक विचार विमर्श किया। The judges deliberated for an hour before announcing the winner. The judges deliberated for an hour before announcing the winner. सीता अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। सीता couldn't control her emotions. सीता couldn't control her emotions. कंट्रोल करना यानी नियंत्रित करना। प्यार और नफरत एक दूसरे की विपरीत भावनाएं हैं। लव एंड हेट इमोशंस आर अपोजिट टू ईच अदर। लव एंड हेट इमोशंस आर अपोजिट टू ईच अदर।
मेरे भाई अंकित की अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है. My brother Ankit has a good grasp over the English language. My brother Ankit has a good grasp over the English language. पर्वतारोही ने दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ लिया. The mountaineer grasped the rope tightly with both hands. The mountaineer grasped the rope tightly with both hands. Grasped मतलब कसकर पकड़ना. जो खाना हो खा लो. Have what you like. Have what you like. क्या तुम्हें अब भी और चाहिए? Do you still need more? Do you still need more? उसने हमेशा मुझ में कमियां निकाली. He always found faults in me. He always found faults in me. कभी न कभी तो तुम सीख जाओगे. Sooner or later you will learn. Sooner or later you will learn. अगर पैसे मिले तो भी मैं यह काम नहीं करूँगा. Even if I get the money, I won't do this job. Even if I get the money, I won't do this job. अगर वह बोल भी दे तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा. Even if he tells the truth, no one will believe him. Even if he tells the truth, no one will believe him. Believe यानी विश्वास. तुम पहले जैसे नहीं रहे. You are no longer as before. You are no longer as before. कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का. There must be some way to learn English. There must be some way to learn English. मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा. I never said anything to you. I never said anything to you. मैंने सोचा था हम इस संडे मिलेंगे. I thought we would meet this Sunday. I thought we would meet this Sunday. ना तो तुमने काम किया ना ही तुम्हारी बहन ने. Neither you nor your sister did the work. Neither you nor your sister did the work. मुझे यह खरीदना है. I have to buy this. I have to buy this. buy यानी खरीदना. मालिश से दर्द में राहत मिलेगी. मसाज विल हेल्प द पेन. मसाज विल हेल्प द पेन. पेन यानी दर्द. मैं तुम्हारी मालिश कर रही हूँ. I am giving you a massage. I am giving you a massage. मसाज यानी मालिश. वह अपने कमरे में है. He is in his room. He is in his room. तुम्हें छाता ले जाना चाहिए था. You should have taken an umbrella. You should have taken an umbrella. Taken यानी ले जाना चाहिए था. कुंडी खोल दो. Unlatch the door. Unlatch the door.
यह दूध फटा हुआ है। दिस मिल्क इज कर्डल्ड, कर्डल्ड यानी फटा हुआ। दिस मिल्क इज कर्डल्ड। यह मछली ज्यादा पक चुकी है। दिस फिश इज ओवर कुक्ड, ज्यादा पकना यानी ओवर कुक्ड। दिस फिश इज ओवर कुक्ड। आप शुक्रवार को दोपहर के भोजन के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? Why don't you come over to my house for lunch on Friday? Why don't you come over to my house for lunch on Friday? मेरे बड़े भाई रोज आते हैं और हम टहलने जाते हैं। My elder brother comes over every day and we go for a walk. My elder brother comes over every day and we go for a walk. अब बचपना करना बंद करो, यह बेवकूफ़ी होती है। Now stop being childish, this is stupid. Now stop being childish, this is stupid. यह जूते तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। These shoes look great on you. These shoes look great on you. कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ? Am I not disturbing you? Am I not disturbing you? Disturb करना यानी कि परेशान करना। अंग्रेजी भाषा रोजगार उत्पन्न करने में मदद करती है। The English language helps in generating employment. The English language helps in generating employment. Employment यानी कि रोजगार। बहते पानी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। The running water is used to generate electricity. The running water is used to generate electricity. जब से नितेश के पास पैसे आए हैं वह बहुत घमंडी हो गया है। Ever since Nitesh has become rich, he has become very haughty. Ever since Nitesh has become rich, he has become very haughty. क्या आपके सिर में अभी भी दर्द है? Does your head still ache? Does your head still ache? नेहा को उदास देखकर मेरे दिल में वेदना होती है। It makes my heart ache to see Neha sad. It makes my heart ache to see Neha sad. वह दिन रात पढ़ाई करता है। He studies day in day out. He studies day in day out. Day in day out यानी दिन रात। इस पहेली को हल करना काफ़ी जटिल है। Solving this puzzle is quite intricate. Solving this puzzle is quite intricate. मैं एकाध दिन में आऊँगा। I will come in a day or so. I will come in a day or so. वह आने वाली है। She is about to come. She is about to come. About to come यानी आने वाली है। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। Okay, then do one thing, give one more. Okay, then do one thing, give one more. यह ब्रेड जल गई है। This bread is burnt. This bread is burnt. क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? Are you the owner of this shop?
Are you the owner of this shop? हमें अपनी टीम को उनकी जीत पर बधाई देनी चाहिए. We should felicitate our team on their victory. We should felicitate our team on their victory. वह अपने माता पिता के आदेश का पालन करता है. He obeys his parents' fescue. He obeys his parents' fescue. यह एक तर्कहीन मामला है. This is a fallacious matter. This is a fallacious matter. हवा की हल्की आवाज शांतिपूर्ण थी. The sursurus of the wind was calming. The sursurus of the wind was calming. कल रात हमारी बहस हो गई थी. We had an altercation last night. We had an altercation last night. इसमें हंसने वाली क्या बात है? What is there to laugh? What is there to laugh? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था. I have already explained to you. I have already explained to you. बच्चों शोर मत मचाओ. Kids don't make noise. Kids don't make noise. मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है. I am going through a good day. I am going through a good day. मैं अपने बच्चों को नहला रहा हूँ. I am giving a bath to my son. I am giving a bath to my son. आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है. No words are enough to compliment you. No words are enough to compliment you. वह अपनी बातों से मुकर गया. He backed out of his words. He backed out of his words. बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला. Curse comes to home to roost. Curse comes to home to roost. देख रहे हो उसके रंग ढंग. You see her demeanor. You see her demeanor. तुम्हारे भी हजारों चोचले हैं. You have many tantrums. You have many tantrums. Tantrums यानी चोचले. स्थिति नियंत्रण से बाहर है. The situation is out of hand. The situation is out of hand. क्या तुम इसे विस्तार से समझ सकती हो? Can you shed light on it? Can you shed light on it? Shed light यानी विस्तार से समझना. वह जल्दी सो जाता है. He falls asleep quickly. He falls asleep quickly. कुछ भी करना है आराम से करो. Feel free to do anything. Feel free to do anything. वह अपने काम में माहिर है. He is skilled at his work. He is skilled at his work.
काश मेरे पास एक कार होती। I wish I had a car. I wish I had a car. मुझे अपना पासवर्ड बदलना होगा। I need to change my password. I need to change my password. क्या तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया? Was your account hacked? Was your account hacked? मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। I don't have any grudge against you. I don't have any grudge against you. चाय बड़ी ही बेस्वाद है। The tea is insipid. The tea is insipid. जितना चादर उतने पैर फैलाओ। Cut your coat according to your cloth. Cut your coat according to your cloth. उसने यात्रा को अंतिम समय पर स्थगित कर दिया। He postponed the trip at 11th hour. He postponed the trip at 11th hour. वह वफादार आदमी है। He is stalwart person. He is stalwart person. Stalwart person यानी वफादार आदमी। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। I am having breakfast. I am having breakfast. जल्दी से कुछ खा लेते हैं। Let's grab a quick bite. Let's grab a quick bite. मैं आपसे बाद में संपर्क करूँगा। I will touch base with you later. I will touch base with you later. अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। Good children do not insist. Good children do not insist. Insist यानी जिद करना। अब मेरी वाट लग गई। I am in a big trouble now. I am in a big trouble now. क्या मुझे एक चाय मिलेगी? Can I get a cup of tea? Can I get a cup of tea? मैं इससे अपना काम चला लूँगा। I will make do with it. I will make do with it. Make do यानी काम चला लेना। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। I have a splitting headache. I have a splitting headache. कुछ लोग न सिर्फ बातें बनाते हैं। Some people only give lip service. Some people only give lip service. सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। He was cynosure of all eyes. He was cynosure of all eyes. मैंने तुक्का लगाया था। I made a wild guess. I made a wild guess. उसकी बातों में मत आना। Don't get into her words. Don't get into her words. तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। You look very happy today. You look very happy today. मुझे अंधेरे से डर लगता है।
I am scared. Scared यानी डरना. Of darkness. I am scared of darkness. ना तो तुम खबर सुनते हो नहीं देखते हो. You neither listen to nor watch the news. You neither listen to nor watch the news. ना तो हम कुछ खा सके ना ही पी सके. We could neither eat nor drink anything. We could neither eat nor drink anything. Anything यानी कुछ. लहसुन खत्म हो रहा है. Garlic is running out. Garlic is running out. Running out यानी कि खत्म होना. पापा को बताने से कुछ नहीं होगा. Telling Papa won't help. Telling Papa won't help. Won't help यानी कुछ नहीं होगा. सब कुछ नियंत्रण में है. Everything is under control. Everything is under control. Under control यानी नियंत्रण में है. 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे इंतजार करते हुए. I have been waiting for over an hour. I have been waiting for over an hour. Over an hour यानी 1 घंटे से ऊपर. मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ. I am not here for the first time. I am not here for the first time. First time यानी कि पहली बार. यह कपड़े ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले. These clothes are not going to stay long. These clothes are not going to stay long. मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं सकता. I can't forget her even if I try. I can't forget her even if I try. मैं बहुत खुश हो गया हूँ. I have become very happy. I have become very happy. Very happy यानी बहुत खुश. मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ. I love my mother very much. I love my mother very much. Very much यानी बहुत ज़्यादा. मुझे वह बहुत पसंद है. I like him very much. I like him very much. Very much यानी बहुत ज़्यादा. वह बहुत सारा पानी पीता है. He drinks a lot of water. He drinks a lot of water. Lot of water यानी कि बहुत सारा पानी. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ. I am with my friends. I am with my friends. Friends यानी कि दोस्त. वह बहुत साफ सुथरा दिखता है. He looks very neat and clean. He looks very neat. Neat यानी साफ और सुथरा यानी clean. ढोंगी हो तुम. You are a hypocrite. You are a hypocrite. तुम चुगलखोर हो. You are a tally-teller. You are a tally-teller. उसकी मुस्कुराहट गजब की थी और उसकी पर्सनालिटी भी. He had a dazzling smile and super personality as well. He had a dazzling smile and a super personality as well. तुम कहाँ खोई हुई हो. Where are you lost? Lost यानी खोना. Where are you lost? उसे तमीज़ सिखाओ. Teach him manners. Manners यानी कि तमीज़ और सिखाना यानी टीच करना. टीच हिम मैनर्स. जहाँ तक मुझे पता है. As far as I know. As far as I
नो यानी कि जानना। अपने आप को संभालो, पुट योर सेल्फ टुगेदर, पुट योर सेल्फ टुगेदर। पुट यानी कि रखना होता है। अकेले मत टहलो, डोंट वॉक अलोन, डोंट वॉक अलोन। अलोन यानी कि अकेले। मैंने तो सब सही किया था, आई डिड एवरीथिंग राइट, आई डिड एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, राइट। तुमसे बहस करना बेकार है, इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू, इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू। आर्ग्यू यानी कि बहस करना। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका, ही विल स्टडी इन अमेरिका। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना। और मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। मैं जनवरी में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। बॉर्न यानी कि पैदा होना। जब तक आप मुझे साथ देंगे मैं खुश रहूँगा, एज लॉन्ग एज यू स्टैंड बाय मी आई विल बी हैप्पी, एज लॉन्ग एज यू स्टैंड बाय मी आई विल बी हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश रहना। जहाँ तक मुझे पता है वह कल आ रहा है, एज फार एज आई नो ही इज कमिंग टुमारो, as far as I know he is coming tomorrow। कम करना मतलब कि आना, tomorrow यानी कल। जितना आप मुझे प्यार करते हैं उतना ही मैं आपसे करता हूँ, as much as you love me I love you too, as much as you love me I love you too। as much as यानी कि जितना आप मुझे। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क, जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग यस यानी केवल हाँ कहना। मैं अचानक से सब कुछ भूल गया, आई सडनली, अचानक यानी सडनली, ब्लैंक्ड आउट। ब्लैंक आउट यानी क्या होता है कि खाली हो जाना, भूल जाना सब कुछ। सो आई सडनली ब्लैंक्ड आउट। वह बहुत बड़ा फेंकू है, ही इज सच अ ब्रैगर। ब्रैगर यानी फेंकने वाला, जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, तो ही इज सच अ ब्रैगर। मेरे पास उसका नंबर तो है पर उसे फोन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, आई हैव हर डिजिट्स। उसका नंबर को कैसे हम बोल रहे हैं, आई हैव हर डिजिट्स बट नो क्वेश्चन राइजेस टू रिंग अप, है ना, सवाल नहीं उठता, यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू रिंग अप। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करना यानी अटॉन करना, ही अटॉन्ड फॉर हिज सिंस, ही अटॉन्ड फॉर हिज सिंस, सिंस यानी पाप। तुमने तो सब गड़बड़ कर दी, यू मैस्ड इट ऑल अप, यू मैस्ड इट ऑल अप। मैस्ड यानी कि गड़बड़ करना। आप रहने दो मैं कर लूंगा, यू लेट इट बी आई विल डू इट, यू लेट इट बी आई विल डू इट। मैं कर लूंगा यानी आई विल डू इट। छोटी छोटी बातों पर निराश मत हो, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन यानी होता है निराश होना, ओवर स्मॉल थिंग्स। अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, नाउ आई फील अ बिट लाइटर, थोड़ा हल्का यानी कि बिट लाइटर।
और फील यानी महसूस करना. नाउ आई फील अ बिट लाइटर. थोड़ा खाना खा लो. हैव सम फूड. हैव सम फूड. सम फूड यानी कि थोड़ा खाना. हैव यानी ले लो. अंदर से शांति महसूस हो रही है. आई एम फीलिंग काम फ्रॉम विद इन. आई एम फीलिंग काम. फीलिंग यानी महसूस करना और काम यानी शांति. आई एम फीलिंग काम फ्रॉम विद इन. कोई बात दिल को चुभ रही है. समथिंग इज प्रिकिंग माई हार्ट. प्रिक करना यानी कि चुभना. समथिंग इज प्रिकिंग माई हार्ट. क्या तुम मेरे लिए थोड़ा रुक सकते हो? कैन यू वेट अ लिटिल फॉर मी. कैन यू वेट अ लिटिल फॉर मी. वेट यानी कि इंतजार करना और लिटिल यानी कि थोड़ा सा. यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा. यू वोंट गेट दिस चांस अगेन. यू वोंट गेट दिस चांस. चांस यानी कि मौका और अगेन यानी कि दोबारा. कभी कभी समय बहुत तेज भागता है. समटाइम्स टाइम फ्लाइज रियली फास्ट. फ्लाई करना यानी भागना या फिर बोलने से ये उड़ना. समटाइम्स टाइम फ्लाइज रियली फास्ट. आज स्कूल कैसा गया. हाउ वॉज स्कूल टुडे. हाउ वॉज स्कूल टुडे. स्कूल यानी कि आप जानते ही होंगे विद्यालय और टुडे यानी आज. सब्जी में मसाला डाल दो. एड मोर स्पाइसेस. स्पाइसेस यानी कि मसाले. एड मोर स्पाइसेस टू द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी. चावल को और पकने दो. लेट द राइस कुक मोर. लेट द राइस. राइस यानी कि चावल. कुक मोर. आज मैं आपके साथ खेलूंगी भी. आई विल ऑल्सो प्ले विद यू टुडे. आई विल ऑल्सो प्ले विद यू टुडे. टुडे यानी कि आज और प्ले यानी कि खेलना. अगर पापा हाँ बोलेंगे तो हम चलेंगे. इफ डैड सेज यस देन वी विल गो. इफ डैड सेज यस देन वी विल गो. मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए. वॉट शुड आई वेयर फॉर द पार्टी. वॉट शुड आई वेयर. वेयर यानी पहनना. फॉर द पार्टी. मुझसे कुछ भूल हो गई क्या. हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग. हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग. एनीथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत या कुछ भूल. जो बोल दिया सो बोल दिया. What is spoken is spoken. What is spoken is spoken. नेहा खाना बनाने की शौकीन है. नेहा is fond of cooking food. नेहा is fond of cooking food. जरूरत से ज्यादा मत बोलो. डोंट स्पीक मोर देन इनफ. डोंट स्पीक मोर देन इनफ. क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो. कैन यू डू इट अगेन. कैन यू डू इट अगेन. अगेन यानी फिर से. और कैन का मतलब होता है सकना. यह काम बहुत आसान है. दिस टास्क इज वेरी इजी. दिस टास्क इज वेरी इजी. टास्क यानी कि काम. जब तुम कमरे से जाओ तो लाइट्स बंद कर देना. स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम. स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम. लीव यानी कि छोड़ना होता है और स्विच ऑफ यानी कि बंद करना. शोर मत करो. पापा आराम कर रहे हैं. डोंट मेक नॉइज. योर फादर इज रेस्टिंग. डोंट मेक नॉइज. योर फादर इज रेस्टिंग. रेस्टिंग यानी कि आराम करना.
खाने के लिए आने से पहले हाथ अच्छे से धो लो। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। वॉश यानी कि धोना होता है और प्रॉपरली होता है मतलब अच्छे से, और बिफोर ईटिंग यानी कि खाने से पहले।